Assalamu alaikum, dear students. Today I am going to discuss one more topic related to instruments. That is, dear students, I am again here with the topic current electricity and with the second instrument, and that second instrument is potentiometer. Dear students, we have already done the topic related to meter bridge, and we have performed experiment how to measure resistance with the help of a meter bridge. But dear students, today I am going to discuss one more instrument, one more practical instrument here, and that instrument which is dealing here with the measurement of EMF cells, and which compares to other EMF of two cells, and which measures internal resistance of a cell. So dear students, let us first of all see what is potentiometer and why the necessity potentiometer. See dear students, now first of all let us here discuss what is potentiometer. तो बेटा देखिए मैंने यहाँ लिखा, तो आज का टॉपिक जो है वो पोटेंशियोमीटर के बारे में है. ओके, वेरी नाइस. सी डियर स्टूडेंट्स, क्या लिखा बेटा मैंने? पोटेंशियोमीटर. क्या लिखा मैंने? पोटेंशियोमीटर. क्या होता है पोटेंशियोमीटर? पहले मैं बताऊंगा इसकी मीनिंग, और फिर मैं बताऊंगा बेटा ये क्यों, व्हाई दिस इंस्ट्रूमेंट. सी, पोटेंशियो मीन्स वोल्टेज. पोटेंशियो मीन्स डियर स्टूडेंट्स वोल्टेज, एंड प्लस मीटर. मीटर मीन्स मेजरमेंट. मीटर मीन्स मेजरमेंट. तो बेटे क्या है मीनिंग पोटेंशियोमीटर की? क्या है मीनिंग इसकी? पोटेंशियो मीन्स, पोटेंशियो वर्ड मीन्स वोल्टेज एंड मीटर मीन्स मेजरमेंट. सो it is an instrument which measures EMF, voltage of a terminal potential difference of a cell, EMF of a cell. Particularly, it can measure potential difference between 2 points. It can compare EMF of two cells. But the why potentiometer? The name potentiometer indicates. The word potentiometer means voltage plus measurement. That means measurement. It measures. That is, it measures EMF of a cell. It measures EMF of a source. And here particularly I am taking in my topic, that is cell. That is related there in the board syllabus. Is particularly there in the measurement of EMF of a cell. So what is potentiometer? Means voltage measurement. That means measurement of voltage or EMF of a cell. Okay, very nice. देखो बेटे क्या है, बट वी नो दैट वाई वी हैव a device that is known as voltmeter. बेटा हमको पता है कि वोल्टमीटर क्या देता है. वोल्टमीटर आल्सो डियर स्टूडेंट्स गिव्स मेजरमेंट ऑफ, दैट इज इट मेजर्स क्या मेजर करना है बेटा? मेजर्स EMF और वोल्टेज ऑफ ए सेल. EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम लिखेंगे EMF और वोल्टेज ऑफ ए सेल. क्या मेजर करता है बेटे? क्या लिखा मैंने यहाँ? वोल्टमीटर आल्सो मेजर्स EMF और वोल्टेज ऑफ ए सेल. देन व्हाई पोटेंशियोमीटर? व्हाई दिस थिंग? व्हाई दिस इंस्ट्रूमेंट? डियर स्टूडेंट, सी, दिस वोल्टमीटर मेजर्स EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल approximately. This measures voltage or EMF of a cell, but approximately, not accurately beta. Here it measures it not accurately but approximately. The more accurate, we cannot say 100% accurate it measures, but it compares more accuracy. It has more accuracy. इसकी accuracy बेटा ज्यादा है as compared to voltmeter. This potentiometer measures voltage of a cell or EMF of a cell more accurately as compared to voltmeter. That is why potentiometer. अब दिखाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है voltmeter में, जो ये why it does not measures accurately EMF of a cell. और इसके बाद यहाँ डिस्कस करेंगे क्या बेटा potentiometer. ठीक है ना? Why potentiometer here instead of voltmeter? क्योंकि बाद में डिस्कस भी करना है. डिफरेंस we have to differentiate here potentiometer with the voltmeter. बेटा हमको potentiometer को differentiate करना है voltmeter से भी, वो भी डिस्कस करना है ना, यही चीजें भी डिस्कस करनी है. तो हम यहाँ देखेंगे कि why voltmeter is not in a position to measure EMF of a cell 100% accurately, and why there is need of potentiometer. And after that I will discuss here potentiometer and its principle and its construction, and then how, and then different applications of potentiometer. Okay, very nice. See dear students, देखो बेटा क्या है, सी डियर लिखो, उतार लो बेटा. क्या है पोटेंशियोमीटर का मतलब? क्या है? पोटेंशियो मीन्स वोल्टेज, मीटर मीन्स मेजरमेंट, बट इट मेजर्स मोर एक्यूरेटली
एज कंपेयर टू वोल्टमीटर। क्या खामी है वोल्टमीटर में, क्यों एक्यूरेटली नहीं मेजर करता है, दिखाएंगे बेटा, समझ लो, थोड़ा समझ लो, क्योंकि ये आगे काम आएगा, आपको हर जगह काम आएगा। देखो बेटा, मैंने यहाँ एक सेल ले ली, मान लीजिए कि ये सेल, इसका ये बेटा पॉजिटिव और इस सेल का ये नेगेटिव, ठीक है ना। लेट इट इज ईएमएफ इज ई लिखा मैंने, इसका यही मेजर करना है, इसी ये ईएमएफ इसका। When no current is drawn from the cell, then the terminal potential difference of the cell is known as EMF of the cell. We know this बेटा। लेकिन इसको ये EMF मेजर करने के लिए हम एक वोल्टमीटर लगाते हैं बेटा। यहाँ इस पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ एक वोल्टमीटर लगाएंगे, ऐसी बेटा वोल्टमीटर है, और इस वोल्टमीटर का पॉजिटिव के साथ है। प्रोसीजर हाउ टू कनेक्ट इट, एंड वोल्टमीटर का नेगेटिव यहाँ किसके साथ लगाना है, नेगेटिव ऑफ दिस, नेगेटिव ऑफ द EMF, negative of the cell. Positive is connected to the positive of the voltmeter, और बेटा नेगेटिव ऑफ द वोल्टमीटर इज कनेक्टेड टू द, किसके साथ कनेक्ट करेंगे बेटा, नेगेटिव ऑफ द सेल। नाउ हाउ इट मेजर्स द रीडिंग ऑफ दिस वोल्टमीटर हियर, द रीडिंग ऑफ दिस वोल्टमीटर इज गिव्स हियर EMF ऑफ दिस सेल बट नॉट एक्यूरेटली। देखो बेटा, यह है तरीका कि किस तरह से हम इस सेल का EMF मेजर करेंगे इस वोल्टमीटर के साथ। वोल्टमीटर का एक पॉजिटिव हमने बैटरी के इस सेल के पॉजिटिव के साथ हमने कनेक्ट किया, और बेटे इस वोल्टमीटर का नेगेटिव हमने इस सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। यह है प्रोसीजर। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखो बेटा क्या है, अब ये क्या है, जो रीडिंग ये देगा, द रीडिंग दैट दिस वोल्टमीटर गिव्स हियर इज द EMF ऑफ दिस सेल बट नॉट एक्यूरेटली। देखो बेटा क्या खामी है, देखो क्या है, आप देखो तमाशा। हमको पता है कि, देखो बेटा क्या है, ओके वेरी नाइस, सी नाउ व्हाट इज हियर डियर स्टूडेंट्स, यहां वी राइट हियर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ऐसे लिखते हैं ना बेटा, जो आपको पता है कि हाँ व्हाट इज दिस आर, दिस आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक है ना। देखो बेटा क्या है, और E क्या है, E इज EMF ऑफ ए सेल, ठीक है ना बेटा। देखो क्या है, अब यहाँ करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, क्योंकि क्लोजर सर्किट हो गया, ये क्लोजर सर्किट हो गया, तो करंट यहाँ ड्रा हो जाएगी फ्रॉम पॉजिटिव, ऐसी आ गई करंट है। ओके, यहाँ और यहाँ ऐसी, तो ऐसी। देखो बेटा, आप यहां से यहां तक हम KVL लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, KVL। क्या खामी है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट वोल्टमीटर डज नॉट मेजर्स एक्यूरेटली, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट वोल्टमीटर डज नॉट मेजर्स, वोल्टमीटर does not measure EMF of a cell accurately। क्या प्रॉब्लम है, यही मैं यहां डिस्कस करता हूं। व्हाट इज द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है ऐसी बेटा, ये मैंने किया, वोल्टमीटर को कनेक्ट किया पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव के साथ। ये R है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, और E क्या है, E इज EMF ऑफ ए सेल। देखो बेटा क्या है, अब मैं KVL लगाऊंगा, ये इसका इसी का जवाब दूंगा, यहाँ इसी का जवाब है, यहाँ सोल्यूशन इसका क्या प्रॉब्लम है। देखो बेटा, करंट यहां से आ रहा है, यहां लूंगा एक पॉइंट, इसको कहेंगे A पॉइंट और इस पॉइंट को B कहेंगे। KVL लगाऊंगा, KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। KVL का मतलब क्या है बेटा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे कहां से कहां तक, फ्रॉम A टू B। दिस पार्ट ऑफ द सर्किट में हम इस्तेमाल करेंगे KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। देखो बेटा क्या, यहां से स्टार्ट हो जाएंगे, A से स्टार्ट। तो लेट VA इज, व्हाट इज VA इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज दिस, इसका इस सेल का इस वक्त टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। पॉजिटिव का ये पॉजिटिव, ये क्योंकि यहाँ कोई पोटेंशियल ड्रॉप कोई नहीं, ये पॉजिटिव के साथ है, यहाँ ये एक बेटा है, यहाँ कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो इस टर्मिनल और इस A का सेम है, दैट इज दिस VA इज टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव ऑफ द सेल। ओके VA, तो जब VA से स्टार्ट हो जाएंगे तो यहाँ यू आर गोइंग फ्रॉम, यहाँ जाएंगे कन्वेंशन देने के लिए, हम जाएंगे फ्रॉम A टू B, ठीक है ना। KVL लगाने के लिए हम जाएंगे फ्रॉम कहां से कहां तक जाएंगे, A टू B, और यही पार्ट हमने ले लिया, आई एम कंसीडरिंग दिस पार्ट ऑफ द सर्किट। ओके, देखो बेटे क्या है, VA तो यहां पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे, तो ये माइनस EMF, क्योंकि व्हेन वी गो फ्रॉम हायर टू लोअर देन देयर इज डिक्रीज इन EMF, तो मैंने EMF माइनस ही लिया एज पर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। फिर बेटे यहां देखो, करंट यहां आ रहे हैं, ये माइनस और ये प्लस, क्योंकि यू आर गोइंग फ्रॉम लो टू हाई, तो यू आर गेनिंग, देयर इज गेन इन द पोटेंशियल। तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा, यहाँ I बह रही है, I इंटू R आएगा, IR, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, लेकिन प्लस IR। क्यों प्लस IR,
because you are going from low to high potential. और ये बेटे किसके बराबर आएगा यहाँ, here is potential at point B. Okay, तो therefore this VA is terminal potential of positive cell and VB is terminal potential difference of negative of the cell, negative electrode of the cell. तो therefore VA minus VB क्या आएगा, that is terminal potential difference of a cell. वो बेटे किसके बराबर आएगी, यहाँ लाया हम मैंने VA को ऐसे ही लिखा और VB को यहाँ लाया तो प्लस बनेगा माइनस यहाँ, ठीक है ना बेटे, ये माइनस ये ई क्या बनेगा प्लस, और प्लस आई आर क्या बनेगा माइनस आई आर, ठीक है। लेकिन अब ये रीडिंग देगा, ये वोल्टमीटर क्या रीडिंग देगा, ये मेजर करेगा, ये मेजर नहीं करता है, ये मेजर करता है यहाँ। तो व्हाट इज दिस, दिस इज वोल्टेज हियर, दैट इज वोल्टेज मेजर्ड बाय द वोल्टमीटर, दिस इज वोल्टमीटर की रीडिंग, ये वोल्टमीटर की रीडिंग, ये किसके बराबर है, ये वोल्टमीटर की रीडिंग, दैट इज टर्मिनल। एक्चुअली टीपीडी मेजर करता है, चलो वोल्टमीटर की रीडिंग क्या आ गई, वो आ गई यहाँ बेटा ए माइनस आई आर, कितनी कम, तो ए से कम है। तो द रीडिंग दैट दिस वोल्टमीटर, दिस वी माइनस वीबी, यहाँ बेटा देखो यहाँ ये ए है, यहाँ ये, तो ये क्या मेजर करेगा, वी ए माइनस वीबी, दैट इज मेजर्ड बाय दिस थिंग। V minus VB is measured by this, that is reading of this voltmeter. वो लिखा मैंने, वो V, ये रीडिंग है, ये मेजर करता है, लेकिन ये किसके बराबर है, E minus IR. So this is less than EMF by कितना है, by IR, कितना कम है IR, तो कम दे दी ना रीडिंग, उसने एक्यूरेटली नहीं है, ईएमएफ एक्यूरेटली नहीं मेजर किया, उसने क्या मेजर किया, वी, तो कितना कम है माइनस आई, क्योंकि इसमें कुछ करंट ड्रा हो रही है, करंट है ना, ड्रा हो रही है, ये करंट ड्रा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस करंट ड्रा होने से ये वोल्टमीटर काम करता है, तभी ये रीडिंग देगा इसकी ईएमएफ मेजर करेगा सेल की। जो ये करंट ड्रा हुई, लेकिन ये ड्रॉप हुई यहाँ कुछ, तो एक्यूरेटली तो नहीं आया ना बेटा, इतनी कम हो गई ईएमएफ से आईआर, तो इसीलिए जो रीडिंग यहाँ आई, दैट इज नॉट एक्यूरेटली ईएमएफ, दैट इज लेस देन IR amount potential drop across internal resistance. So that is why this voltmeter does not measures accurately the EMF of a cell. It measures EMF of a cell but less than by an amount IR, and that is this reading. So this is less than. V is less than E. तो voltmeter क्या देता है? That is less than actually EMF, less than actually. क्यों? रीजन क्या है? इसमें करंट ड्रा नहीं होनी चाहिए, करंट ड्रा हो रही है इसी की वजह से। अगर ये करंट जीरो हो गई, अगर ये बेटा देखो क्या है लिखा मैंने यहाँ, ये तो बेटा V किसके बराबर, यहाँ देखो साफ करेंगे, उतार लिया बेटा, हाँ सर उतार लिया, देखो बेटा उतार लिया, हाँ सर उतार लिया, देखो बेटा क्या उतार लो, तो ये V किसके बराबर है, E माइनस आई आर। अगर ये I, इफ दिस I इज जीरो, अगर यहाँ कोई करंट ड्रा नहीं होती और ये वोल्टमीटर काम करता, तो V एग्जैक्टली किसके बराबर आता है, ईएमएफ के बराबर। V एग्जैक्टली किसके बराबर, ईएमएफ। तो क्या टेक्निक होनी चाहिए कि इसमें कोई ड्रा करंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्यों, वोल्टमीटर इज नॉट वर्किंग अनलेस सम करंट है, इट कंज्यूम्स सम करंट एंड देन वर्क्स एंड मेजर्स दिस ईएमएफ, बट वी शुड हैव एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच डज नॉट ड्रा एनी करंट, and that is potentiometer. वो है पोटेंशियोमीटर, देखो बेटा, जो कोई करंट ड्रा नहीं करता है टू मेजर द ईएमएफ ऑफ ए सेल, बट वोल्टमीटर ड्रा सम करंट, कितनी ड्रा करती है, IR, और ये ईएमएफ फिर एक्चुअल नहीं मेजर करता है, इट मेजर्स दिस V, that V is then less than this EMF, that is why it measures this V is less than actual EMF। बेटा ये बात आई समझ में, समझ लो बेटा, समझ में आई बात। ये करंट क्या होनी चाहिए, ये काम करना चाहिए, इट शुड वर्क बट विदाउट कंज्यूमिंग एनी करंट, इट कंज्यूम्स लिटिल करंट बट कंज्यूम्स। वी शुड हैव एन इंस्ट्रूमेंट विच शुड मेजर दिस, बेटा हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जो इस सेल का ईएमएफ मालूम करे, लेकिन कोई करंट इसमें ड्रा ना करे, क्योंकि बाय ड्राइंग दिस करंट ये एक्चुअल नहीं देता है, ये करंट यहां ड्रॉप हो रही है, तो ईएमएफ जो ये रीडिंग देता है, दैट इज लेस देन द एक्चुअल ईएमएफ बाय एन अमाउंट इक्वल टू द पोटेंशियल ड्रॉप हियर। So if we should have an instrument that this I should get minimized or should reduce to zero. If this I reduces to zero, then that instrument will give it is actual reading of EMF, and that is potentiometer here. And dear student, that is potentiometer which does not draws any current for the measurement of EMF of a cell, and that is why the need of
पोटेंशियोमीटर। ओके, आई बात समझ में? दैट इज व्हाई पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच मेजर्स ईएमएफ ऑफ अ सेल मोर एक्यूरेटली। इसमें भी कुछ बेटा, नो नथिंग इन द वर्ल्ड इज आइडियल, इसमें भी कुछ थोड़ा है, लेकिन दैट इज बेटर इंस्ट्रूमेंट एज कंपेयर टू वोल्टीमीटर। अब वोल्टीमीटर क्यों, अक्सर वोल्टीमीटर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वोल्टीमीटर एक छोटा मोटा होता है, छोटा सा मोटा होता है, जो हमारे पास होता है, हम इजिली एक जगह से दूसरी जगह इसको ले जा सकते हैं और मेजर कर सकते हैं वोल्टेज और ईएमएफ ऑफ ए सेल। लेकिन पोटेंशियोमीटर थोड़ा साइज में बड़ा है, ये प्रॉब्लम है पोटेंशियोमीटर की, ठीक है ना? पोटेंशियोमीटर का साइज बड़ा है, इसीलिए इसको अक्सर जगह यूज नहीं करते हैं। अदरवाइज पोटेंशियोमीटर इज बेटर देन, बेटा पोटेंशियोमीटर बेहतर इंस्ट्रूमेंट है टू मेजर ईएमएफ ऑफ ए सेल देन द वोल्टमीटर, देन दैट ऑफ द वोल्टमीटर। ओके, आई बात समझ में? लेकिन अक्सर क्यों वोल्टमीटर से ईएमएफ मेजर करते हैं? क्योंकि वोल्टमीटर तो ये तो आसान है हैंडल करना, इसका साइज छोटा है, ठीक है ना? ठीक है ना? ओके, वेरी नाइस। करेंगे साहब? हाँ सर, करो साहब। ओके, हमको समझ में आई बात। तो वाई ना, वाई पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस विच मेजर्स, एक्चुअली क्यों आ गया, क्यों? बिकॉज इट इज द एडवांस्ड, इट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वोल्टमीटर and it gives more accurate EMF than voltmeter. Okay, very nice. And does not draws any current. यहाँ ने ड्रा की करंट कुछ मेजर करने के लिए ड्रा की ना वोल्टमीटर ने। अभी मैंने यहाँ लिखा है बेटा सेल ऐसी बेटा, फिर मैंने ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, फिर मैंने यहाँ ले लिया वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर कुछ करंट ड्रा कर रहे हैं। फिर वैसे जो ही ये करंट ड्रा करेगा तभी इसकी EMF मेजर करेगा, बट दैट EMF इज देन लेस देन, दिस इज जो मेजर करते हैं ना हम वी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज लेस देन द EMF बाय एन अमाउंट इक्वल टू द पोटेंशियल ड्रॉप हियर अक्रॉस दिस इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बात आई समझ में बेटा? हाँ, आई बात समझ में। तो वोल्टमीटर डज नॉट गिव दैट, क्योंकि करंट ड्रा हो रही है, लेकिन पोटेंशियोमीटर में कोई करंट ड्रा नहीं है। दिखाएंगे ना बेटे, यहाँ डिस्कस करेंगे, भी कुछ डिस्कस ही नहीं किया। लेकिन वोल्टमीटर की खामी आई समझ में, ये एक्यूरेटली नहीं मेजर करता है, ये लेस देन मेजर करता है EMF बाय एन अमाउंट इक्वल टू द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस। ओके बेटे, देखो बेटे, आप देखो तमाशा, सी नाउ सी डियर स्टूडेंट्स, अब देखो तमाशा, देखो क्या है। नाउ आई एम प्रोसीडिंग टुवर्ड्स इंस्ट्रूमेंट दैट इज आवर टॉपिक, दैट इज पोटेंशियोमीटर। मैंने कहा तो पोटेंशियोमीटर क्या, लिखो बेटा आप पहले, क्या क्या होता है पोटेंशियोमीटर? मैंने कहा कि पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस विच मेजर्स, पर्टिकुलरली विच मेजर्स क्या मेजर करता है? which measures EMF of a cell more accurately as computer, more accurately, not 100% accurate, हर इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशंस होती है, लेकिन बेटर इंस्ट्रूमेंट है, which measures EMF of a cell more accurately than the voltmeter. ओके, आई बात समझ में बेटा? हाँ सर, बात आई समझ में। ओके, वेरी नाइस। ना ये किस काम आता है, किस काम आता है बेटे? ये यहाँ क्या करना है, जो बोर्ड सिलेबस में है, बोर्ड हमारा जो है ना, बोर्ड के हिसाब से हम पढ़ेंगे, इट हैज लॉट ऑफ एप्लीकेशंस पोटेंशियोमीटर। लेकिन मेन एप्लीकेशन क्या है यहाँ जो पढ़ेंगे? इट मेजर्स EMF ऑफ ए सेल। क्या मेजर करता है बेटा? EMF ऑफ ए सेल मैंने पहले ही लिखा है यहाँ, एंड बेटर एज कंपेयर टू वोल्टमीटर। दूसरी बात क्या है बेटे? ये पहली बात, EMF ऑफ ए सेल मेजर करता है। दूसरी बात बेटे ये, इट कंपेयर्स EMF ऑफ टू सेल्स। क्या करता है? तो जो बोर्ड सिलेबस में है, बोर्ड के हिसाब से चलेंगे, इट कंपेयर्स EMF ऑफ टू सेल्स। ये भी यहां करना है बेटा। दिस इज ऑल्सो प्रैक्टिकल इन योर 12th क्लास हियर इन बोर्ड एग्जाम। प्रैक्टिकल में आता है कभी कभी ये, और थ्योरी में भी आएगा। इट कंपेयर्स EMF ऑफ टू सेल्स। और तीसरा क्वेश्चन क्या है बेटा? इट फाइंड्स इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ, इट इज यूज्ड टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। क्या बेटा मालूम करते हैं? इट इज यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ, क्या यूज है इसकी बेटे यूज क्या है इसका बेटा? क्या यूज है इसका? इट मेजर्स EMF ऑफ ए सेल, मेजर करता है EMF ऑफ ए सेल। इट कंपेयर्स EMF ऑफ टू सेल्स, ठीक है ना? तीसरी बात ये उतार लो बेटा। तीसरी बात क्या करते हैं? इट मेजर्स इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ऑल्सो इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। लेकिन बेटा ज्यादा हम वही पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है, ठीक है ना? इट ऑल्सो मेजर्स करंट एज वेल। हाउ? लेकिन बेटे ये सिलेबस में नहीं, मेन जो थ्रस्ट यहां है हमारा, जो आपके बोर्ड सिलेबस के हिसाब से है, ये चीजें करनी है। EMF ऑफ ए सेल
और दूसरा कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, और तीसरा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल मालूम करनी है यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट दैट इज पोटेंशियोमीटर। तो लेट अस हियर स्टार्ट हियर व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है ना। तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है? डिवाइस व्हिच मेजर्स ईएमएफ ऑफ ए सेल मोर एक्यूरेटली एज कंपेयर्ड टू द वोल्टमीटर एंड आल्सो इट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ ए सेल, वो मैंने लिखा है ऑलरेडी, एंड आल्सो इट इज यूज्ड टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स and also it is used to find internal resistance of a cell। ये पढ़ना है बेटा, और भी एप्लीकेशंस है बट these are the main applications here। ओके, वेरी नाइस। अब कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि ये पोटेंशियोमीटर कैसी काम करता है, ठीक है ना बेटा। पहले कंस्ट्रक्शन देखेंगे और इसके बाद देखेंगे कि हाउ इट मेजर्स ईएमएफ ऑफ ए सेल एंड हाउ इट देन मेजर्स एंड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ओके बेटा, देखो देखो ये लिखा आपने, उतार लिया? हाँ सर उतार लिया, उतार लिया, उतार लिया, उतार लिया बेटा आपने। हाँ उतार लो, छाप लो बेटा, एंजॉय करो। देखो बेटा क्या है। अब कंस्ट्रक्शन किसकी है? किसकी कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन ऑफ बेटा, किसकी कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन किसकी बेटा? कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर। नाउ हियर डियर स्टूडेंट्स, नाउ कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी? पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन क्या है? इट इज मेड अप ऑफ ए रेजिस्टिव वायर। इट इज मेड अप ऑफ ए रेजिस्टिव वायर बेटा। इट इज मेड अप ऑफ ए रेजिस्टिव वायर, ये है, of uniform area of cross section and of uniform density made up of constantan or manganum, that is these are alloys and have high resistivity and have high values of resistivity। देखो बेटा क्या कंस्ट्रक्शन क्या है? इट इज मेड अप ऑफ, ये वायर किसकी बनी होती है? मैग्नम की और कंस्टेंटन, मैग्नम या कंस्टेंटन की। कंस्टेंटन एक एलॉय है बेटा, एंड दैट हैज हाई रेजिस्टिविटी, दैट इज इट इज ए रेजिस्टिव वायर। इसकी रेजिस्टिविटी क्या है? हाई रेजिस्टिविटी है, हाई रेजिस्टिविटी। एंड इट इज जो है ना क्रॉस सेक्शन, ये सेम होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि कहीं ऐसे कहीं जगह थी, ये नहीं। इट इज हैविंग डिफरेंट एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेकिन इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए, सेम। यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म डेंसिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। बट शुड बी मेड अप ऑफ high resistive wire, and that high resistivity wire is here made up of constantan। So it is, what is this? So it is a, लिखो यहां, it is a wire, it is कंस्ट्रक्शन क्या है? It is a wire, it is wire, resistive wire है, resistive wire। What is this बेटा? It is a resistive wire made up of, किसकी बनी हुई है? Made up of constantan, constant जिसकी रेजिस्टिविटी हाई हो, made up of constantan और मैग्नम। ये लिखो बेटा, ये लिखो, made up of constantan और मैग्नम having क्या बेटा? having constant डेंसिटी भी कांस्टेंट होनी चाहिए, एंड कांस्टेंट बेटा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट रेजिस्टिविटी, कांस्टेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कांस्टेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। क्या लिखा है बेटा मैंने यहां? क्या है कंस्ट्रक्शन इसकी? इट इज ए वायर, इट इज मेड अप ऑफ ए वायर, इट इज मेड अप ऑफ ए वायर, ये लिखो, इट इज मेड अप ऑफ ए वायर, इट इज मेड अप ऑफ ए वायर, रेजिस्टिव वायर, मेड अप ऑफ, यहां लिखा इट इज ए रेजिस्टिव, चलो, इट इज मेड अप ऑफ ए रेजिस्टिव वायर ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ ए वायर दैट इज रेजिस्टिव वायर, इट इज मेड अप ऑफ constantan or magnetic wire having ये लिखो बेटा, सॉरी यहां क्या हुआ? इट इज मेड अप ऑफ ए वायर, इट इज ए वायर, भाई हमने ठीक लिखा था, इट इज ए वायर। ये क्या होती है? इट इज ए वायर किसकी बनी होती है? जो हमने लिखा था, इट इज ए वायर मेड अप ऑफ, किसकी मेड अप? मेड अप ऑफ constantan or magnon having constant density and constant area of cross section। its length is of order of, its length, इसकी length क्या है? its length is 8 to 10 meters length, 8 to 10 मीटर। कितनी लेंथ होती है इसकी? 8 to 10 मीटर बेटा। कितनी लेंथ होती है? 8 to 10।
It is a wire made up of constantan or magnum. यहां बेटा लिखो, it is a wire made up of constantan or magnum. मैग्नम किसकी, कॉन्स्टेंटन या मैग्नम की बनी हुई है, हैव कांस्टेंट डेंसिटी, इसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट बेटा, ओके वेरी नाइस, परेशानी तो नहीं है, नहीं सर। और इसका जो है ना, इसका रेजिस्टिविटी जो है ना, रेजिस्टिविटी इट शुड हैव हाई रेजिस्टिविटी, दैट इज ओनली पॉसिबल बेटा जब ये कॉन्स्टेंटन की है या मैग्नम की है। हैविंग कांस्टेंट डेंसिटी एंड कांस्टेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर जगह सेम होना, ये नहीं होना चाहिए कि वायर ऐसे हो कभी ऐसे, क्योंकि यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये नहीं होना चाहिए, हर जगह होनी सेम, जितना यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना यहाँ होना चाहिए, इतना यहाँ होना चाहिए, और हर जगह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए, सेम, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है, डेंसिटी भी हर जगह, डेंसिटी शुड आल्सो बी सेम, कांस्टेंट डेंसिटी एंड कांस्टेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इट इज लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है बेटा 8 to 10 मीटर्स, ठीक है ना। कॉन्स्टेंटन की बनी हुई है बेटा, हाई रेजिस्टिव वायर है, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, डेंसिटी भी कांस्टेंट है, और बेटा ये 8 to 10 मीटर्स लेंथ है इसकी, इस वायर की। ये रेजिस्टिव वायर है, शॉर्ट में क्या है, रेजिस्टिव वायर ऑफ 8 to 10 मीटर्स लेंथ, 8 to 10 मीटर्स ऑफ लेंथ, हैविंग डिफरेंट रेंजेस, ओके। करूंगा साहब, हाँ ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, हाँ सर, ओके वेरी नाइस, आई बात समझ में सर। अब क्या है, ये कुछ काम नहीं आएगा जब तक इसको किसके साथ कनेक्ट करेंगे बेटा, इसको किसके साथ कनेक्ट करना है, लेट अस से दिस इज ए बी, ये कुछ भी काम नहीं आएगा जब तक कि हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। लेट अस से दिस इज ए पोटेंशियोमीटर वायर मेड अप ऑफ कंस्टेंटन और मैग्नम, 8 to 10 meters length, having uniform area of cross section and having uniform density. This wire is EB. अब इसको, इस एंड को करो कनेक्ट किसके साथ बेटा, इसको कनेक्ट करो पॉजिटिव ऑफ द बैटरी, ये बैटरी है, और यहां करो इस कनेक्ट ए एंड टू द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी and connect the end resistive wire, that is end B, to the negative of the battery, ठीक है ना बेटा। ए एंड को मैंने किसके साथ कनेक्ट किया, पॉजिटिव ऑफ द बैटरी है, दैट इज सप्लाइंग बैटरी विच सप्लाइज करंट एयर, ऐसी आ रही है करंट और ऐसी जा रही है, अलॉन्ग दिस ऐसी आ रही है, ओके वेरी नाइस। अब क्या है बेटा, देखो क्या है, अब देखो क्या है, कैसे काम करेगा ये पोटेंशियोमीटर, ये कैसे काम करेगा, दिस कंस्ट्रक्शन एंड वी कनेक्ट, क्या किया हमने कनेक्ट, ए को किसके साथ कनेक्ट किया, पॉजिटिव ऑफ द बैटरी, और बी को किसके साथ किया, नेगेटिव ऑफ द बैटरी। अब देखो बेटा तमाशा क्या है यहाँ, देखो बेटा, let this battery is having voltage V, कितनी वोल्टेज है, let the value of voltage of the battery is V। तो देखो बेटा क्या है, अगर ये V है, देखो बेटा क्या है, देखो क्या है, इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ दिस बैटरी इज V। इसका मतलब ये भी है कि अगर मैं यहां इसको V मानूंगा, इस पॉजिटिव को, जो पॉजिटिव है यहां लंबा, जो लंबा लिखा है वो पॉजिटिव है, और जो छोटा लिखा है वो नेगेटिव है, ओके वेरी नाइस। तो मान लीजिए कि अगर मैं इस यहां पॉजिटिव यहां इसको यहां मानूंगा V और इसको मानूंगा 0, क्योंकि ये आएगी ना पोटेंशियल डिफरेंस V - 0, तो वो V है, बिकॉज दिस वोल्टेज इज नथिंग, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इन द सेल। यहां लिखा मैंने, मान लीजिए एज्यूम किया V, अगर यहां V है तो यहां क्या होगा, इस नेगेटिव साइड में 0, ये मैंने मान लिया, ठीक है ना। अगर यहां V, ये भी लिख सकता हूं, अगर ये V है, यहां V प्लस C लिख सकता हूं, यहां पे V - C, तो इनकी जो सब्ट्रैक्शन है वो देखो बेटा क्या, ऐसे ऐसे, अगर ये V है ना V, ये V में ये भी लिख सकता हूं V + 3, और यहां लिखूंगा बेटा V - 3, यहां बेटा -3 लिख सकता हूं, यहां V + 3 लिख सकता हूं, यहां -3, क्योंकि इनका जो है ना डिफरेंस आएगी, V + 3 -3 आएगी, V आ गया। जरूरी नहीं है कि ये एंड में यहां लिख सकता हूं V + C, लेकिन ये एंड कितना लिखना है एट द टाइम -C, क्योंकि ये और कैंसिल तो ये, लेकिन मैंने क्या किया आपके लिए बेटा, सिंपलिसिटी के लिए, डोंट यहां कंफ्यूज हो जाओगे आप बेटा। मैंने क्या किया, मैंने इसको V मान लिया, अगर यहाँ V तो इसको यहाँ, और इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V - 0 है, वो V है, ये 0 होगा, ठीक है, ये मान लो। तो यहां भी वोल्टेज V, यहां भी 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 V, ठीक है ना। तो यहां कितनी वोल्टेज, 0 0 0 0, क्योंकि ये कंडक्टिव वायर है, ये कंडक्टिव वायर है, लेकिन ये यहां से A से B तक ये कौन सी वायर है, रेजिस्टिव वायर, इसी को कहते हैं पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर वायर यही होती है, रेजिस्टिव वायर, यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो बेटे क्या है, देखो आप क्या है, यहां कुछ भी ड्रॉप नहीं हो जाएगा, कोई एनर्जी खर्च नहीं, कोई ड्रॉप नहीं होगा, लेकिन यहां तो यहां कितना वोल्टेज होगा, V @ पॉइंट A, क्योंकि यहां V
कुछ भी ड्रॉप नहीं है, तो ये इस पॉइंट ए का कितनी वोल्टेज है, ए बी, और बेटा इस पॉइंट की कितनी वोल्टेज है, 0 0 0 0 0, इसकी वोल्टेज बेटा कितनी है, 0। किस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर। आई बात समझ में, हाँ सर आई बात समझ में, ओके वेरी नाइस। तो यहां से यहां तक इस अक्रॉस दिस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है, बी माइनस 0, ठीक है ना। यहां लिखिए वोल्टेज और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी कितना होगा, बी माइनस 0। यहां से यहां तक कितनी ड्रॉप हो जाएगी, बी माइनस 0, तो वी लिखेंगे। Let L is the length of this potentiometer wire. क्या लिखा मैंने, वोल्टेज और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी, क्या मान लिया, वी ये वी है, ए का वोल्टेज वी है, और बेटा मैंने क्या मान लिया, 0 0 0 0, क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर है, यहां इसकी वोल्टेज क्या है, 0। लेकिन ये रेजिस्टिव वायर है, यहां वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, यहां से यहां तक कितना ड्रॉप हो जाएगा, वी कम हो जाएगा, ड्रॉप, और फाइनली यहां क्या, 0। तो मैंने लिखा वोल्टेज और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी वायर इज वी। यहां ये लिखूंगा सिंपल वर्ड्स में, इन लेंथ एल पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, वी, इन लेंथ एल पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा फ्रॉम ए टू बी, एल, ठीक है ना। और यूनिट लेंथ में कितना हो जाएगा, इन यूनिट लेंथ वन लेंथ, कितना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, इन यूनिट लेंथ, ये यूनिट लेंथ लेंगे, कितना हो जाएगा, V बाय एल, यूनिटरी मेथड जिसको कहते हैं, यूनिटरी मेथड। एल लेंथ में कितनी वोल्टेज है, V है ना, क्योंकि V ये 0, V माइनस 0, तो यहां ड्रॉप V एल लेंथ में। यूनिट लेंथ में कितनी ड्रॉप हो जाएगी, V बाय एल, इसकी यूनिट लेंथ में, ए बी के यूनिट लेंथ में कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी, V बाय एल। अगर कोई बेटा ऐसे लेंगे, कोई एल लेंगे पर, कोई एक्स लेंगे पर, यहां एक्स लेंगे ले ली, यहां एक्स, दैट इज फ्रॉम ए टू सी। एक्स लेंथ जो मैंने कहां से कहां तक, ए टू सी ले ली, पता इसमें कितना हो जाएगा, एक्स लेंथ। तो एक्स लेंथ में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, वी बाय एल इंटू एक्स। AC, that is this is voltage across AC. Voltage drop across AC is equal to V by L into X. ये बात आई समझ में, बात आई बेटा समझ में आई में, नहीं आई, समझाएंगे, रिपीट करेंगे बेटा, हाँ देखो रिपीट करेंगे आपके, ये V यहां ये V है, मान लिया V, अगर ये V है तो ये 0, क्योंकि V माइनस 0 तभी वोल्टेज 0, ये 0 0 0 0, यहां ये 0। तो दिस आर कनेक्टिंग वायर्स, यहां कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, कोई एनर्जी खारिज नहीं हो रही है। लेकिन ए पर वोल्टेज क्या ले ली, V, क्योंकि V कनेक्ट है ना डायरेक्टली, यहां भी V है, कोई जाया नहीं हो रही है वोल्टेज, कोई वोल्टेज जाया नहीं हो रही है, V है। यहां 0 0 0 0 0, यहां भी कोई, यहां क्या 0, लेकिन यहां ये रेजिस्टिव वायर है, मेरा पापा कॉन्स्टेंट और मैग्नर। यहां वोल्टेज ड्रॉप ए टू बी क्या मान लिया मैंने, बी मान लिया कि यहां बी है तो यहां 0 है, तो बी होगा ना। वोल्टेज और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी वायर इज वी, तो दैट इज इसकी लेंथ, लेट ए बी द लेंथ ऑफ ए बी इज एल, तो इन लेंथ एल कितना वोल्टेज ड्रॉप, वी, इन यूनिट लेंथ, इसके यूनिट लेंथ पे कितनी, V बाय एल। अगर एट एनी पॉइंट x दैट इज AC, इस लेंथ पे कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी AC में, एट एनी पोजीशन x में कितनी, V बाय एल इंटू x। देयरफॉर ये BAC वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस AC इज V बाय एल x। आई बात समझ में, छोरा बात आई समझ में, करंट तो चल रही है ना, यहाँ करंट यहां आएगी, यहां जाएगी करंट, ओके, हाँ सर बात है, करेंगे साहब, उतार लिया, छाप लो बेटा, ये उतार लो बेटा, ओके वेरी नाइस, करेंगे साहब, हाँ सर करो साहब, सीरियर, वेरी नाइस। देखो बेटा क्या है, देखो सीरियर, तो देयरफॉर यहां क्या है, ये वोल्टेज इन यहां से यहां एक्स लेंथ पर कितनी आ गई, V बाय एल अक्रॉस AC, V बाय एल इंटू बेटा क्या लिखेंगे, यहां x, ठीक है ना, आई बात समझ में, हाँ सर आई। सो वोल्टेज अक्रॉस V इज हियर, इस V बाय एल को कभी ये भी कहते हैं, इस V बाय एल को क्या कहते हैं,
V by L, that is voltage, total voltage, that is from A to B, divided by total length. Total voltage drop divided by total length of the resistive wire, potentiometer wire, is a constant. इस constant को कहते हैं यहाँ एक K, and that constant is known as potential gradient. क्या कहते हैं इसको बेटा? पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल ग्रेडियंट बेटा यानी यहां मैंने रेजिस्टेंस जो है ना, यहां इस बैटरी की मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो ली, क्योंकि मैंने यहां इंटरनल रेजिस्टेंस ये बोल गया मैं थोड़ा, इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने जीरो ले लिया, तो मैंने इसको आइडियल सेल मान लिया. क्या मान लिया? आइडियल सेल. आइडियल सेल किसको कहते हैं? कि जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो. मैंने ऑलरेडी ये डिस्कस की है ये चीजें बेटा. ओके, वेरी नाइस. तो V by L का एक नॉर्म है, that is K, that is known as potential gradient. What does potential gradient mean? Potential per unit length. The change in potential, change हो जाता है, खारिज होता है, चेंज होता है as according to length. जितनी लेंथ बढ़ जाती है इतनी पोटेंशियल क्या ड्रॉप होती है. तो पोटेंशियल बाय लेंथ, that is potential per unit length is known as potential gradient. Rate of change of voltage with respect to length. क्योंकि voltage increase हो रही है with respect to length is known as potential gradient. यहाँ शॉर्ट में लिखो V by L क्या है बेटा? potential gradient. KC लिखा. तो therefore ये V क्या है? VAC, that is from A to C, इस लेंथ X लेंथ क्या है? KX लेंथ तक. तो वोल्टेज क्या है? So voltage drop across this AB wire is directly proportional to length of the wire. More the length, more the voltage drop. क्योंकि इस AB लेंथ तक V हो रहा है, फुल V हो रहा है, लेकिन AC तक कितना हो रहा है? V by L into X. V by L क्या लिखा है मैंने? पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो VAC यहां से यहां तक कितना आ गया? VAC. V की V by L के बदले K लिखा और यहां बेटा X. तो क्या आया यहां? शाबाश, यही है इक्वेशन. This is the equation that we are going to utilize there in the measurement of different parameters, measurement of a cell, comparison of EMF of a cell. ये बेसिक इक्वेशन है, ये याद रखो, ये बेसिक इक्वेशन है, ठीक है ना. अब बेटा करेंगे साहब. हाँ सर करो साहब. लिखा आपने? हाँ लिखा. उतार लिया? हाँ सर उतार लिया. देखो बेटा क्या है? C my dear. ओके, वेरी नाइस. तो क्या लिखेंगे यहाँ? प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल लिखो आप. इसका प्रिंसिपल लिखो प्रिंसिपल ऑफ किसका? प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर लिखो बेटा. प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या होता है? शाबाश बताइए. It works on null deflection method. Okay, very nice. ओके, ठीक है ना बेटा? हाँ ठीक है. ओके, नाइस. इट वर्क्स ऑन किस पर बेटा करते हैं काम? यहां लिखा मैंने VAC के. लिखो पहला प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. क्या लिखेंगे? बिजली चली गई, बी आएगी बेटा. तो क्या लिखेंगे? पहला प्रिंसिपल यह है कि ये लिखो द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर. द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन, AC पोर्शन, या यहां से यहां तक A to L ये पोर्शन. देखो प्रिंसिपल. द पोटेंशियल ड्रॉप, ये लिखो बेटा, उतार लो. द पोटेंशियल ड्रॉप across any portion of the resistor wire, is directly proportional to the length of the wire. क्या बेटा? पहली बात, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द लेंथ इज, है ना, ये पोटेंशियल क्या है बेटा? ये VAC. दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस VAC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर. क्योंकि यहाँ A to यहाँ कुछ A to C कितनी लेंथ है? X लेंथ. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर. ये पोर्शन मैंने ले लिया इस वायर का. कितनी इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू लेंथ. लेंथ कितनी है? X. Portion of the resistive wire, that is potentiometer wire, is directly proportional to the, क्योंकि K constant है, potential gradient है. VAC is, that is potential drop across this AC wire, is directly proportional to length of the wire. Length of the wire कितनी है? X. ये पहली बात है.
प्रिंसिपल के लिए। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये बेटा लिखा आपने, उतार लो, अच्छा पॉइंट है। और दूसरी बात ये है बेटा, दूसरी बात क्या है, हम दूसरी बात लिखो। द सेकंड थिंग हियर इज लाइक दिस डियर स्टूडेंट्स, दैट it works on null deflection method. It works on zero deflection लिखो या no deflection. It works on zero deflection लिखो और लिखो no deflection, ये लिखो, ये उतार दिया, हाँ बेटा उतारो पहला दो प्रिंसिपल्स हैं यहाँ। प्रिंसिपल के लिए 2 पॉइंट्स हैं यहाँ, एक पॉइंट मैंने ले लिया लिखा, और दूसरा क्या है, it works on that deflection, it works on zero deflection or null deflection मेथड। ये दिखाएंगे कैसे, ये दिखाएंगे। दूसरा पॉइंट जो है ना, ये डिस्कस हो जाएगा ये भी। लेकिन पहला आपको समझ में आया, पहला पॉइंट आया समझ में, हाँ बेटा आया समझ में, बेटा आया समझ में, हाँ सर आया। क्या पहला पॉइंट है, इट वर्क्स ऑन जीरो डिफ्लेक्शन और नॉन डिफ्लेक्शन मेथड ना। पहला पॉइंट ये है, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, इट वर्क्स ऑन जीरो डिफ्लेक्शन, ये कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहा है जब ईएमएफ ऑफ द सेल मेजर करे, क्योंकि मैंने कहा ना कि वोल्टमीटर जब ईएमएफ ऑफ द सेल मेजर करते हैं तो कुछ वहां से करंट ड्रॉ करते हैं, दैट इज वाई कि वो एक्यूरेटली मेजर नहीं करता है, जैसे कि V = E - IR आ गया। लेकिन बेटे यहां क्या है, यहां ये कोई करंट नहीं निकालेगा व्हाइल मेजरिंग ईएमएफ ऑफ द सेल, वो देखेंगे भी मैंने नहीं देखा, लेकिन लिखना है, लिखो पहले, इट वर्क्स ऑन जीरो डिफ्लेक्शन और नॉन डिफ्लेक्शन मेथड। हाँ लिखा, कितने पॉइंट्स है, 2, ये 2 पॉइंट्स लिखो, ये प्रिंसिपल, दीज आर द मेन पॉइंट्स देयर फॉर द प्रिंसिपल ऑफ द वर्किंग ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। ओके दिखाएंगे, लेट अस हियर। तो बेटा जो पहला प्रैक्टिकल है ना वो है, नाउ हाउ टू फाइंड ईएमएफ ऑफ ए सेल। क्या करना है मालूम, अब फर्स्ट यूज हियर इज, नाउ फर्स्ट यूज बेटा लिखेंगे यहां, फर्स्ट यूज। तो पहला यूज इसका क्या है, व्हाट इज फर्स्ट यूज, हाउ टू फाइंड ईएमएफ ऑफ ए सेल। कैसे मेजर करेंगे EMF ऑफ ए सेल, क्या मेजर करना है बेटा, EMF ऑफ ए सेल। वो बेटा वो मैं बताऊंगा EMF ऑफ ए सेल अभी में, इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस हो जाएगा कि हाउ वी कैन मेजर EMF ऑफ ए सेल, ठीक है ना। अभी लेक्चर आएगा बेटा, लेक्चर दूंगा ना नेक्स्ट लेक्चर, जिसका फर्स्ट लेक्चर ऑफ पोटेंशियोमीटर, और जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा, क्योंकि बिजली चली गई, लेकिन दूसरे टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, EMF ऑफ ए सेल, हाउ टू मेजर दिस। ओके, वेरी नाइस, विशिंग यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक, वेरी नाइस।